Good morning, students. Today we are going to finish the story, The Enemy. In the previous lecture, we read that the Japanese soldier had been prepared by Sadao. He had been told by Sadao that he would have to wait on the island that is near Japanese coast, and from there, Korean fishing boats pass, and he could take help from them. And he had put all the things that would be needed by the American soldiers in a boat, and he was given Japanese clothes, and his head was also wrapped by him with black cloth. So in this way, he prepared everything. He prepared the situation for the American soldier. Let us read what is there after that. So we read till this point. He had wrapped a black cloth about his blonde head, and you know why? Because he wanted him not to be seen by others, because his hair is blonde. Now Sadao said. The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly, and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He used twice the flashlight that had been given to him by Sadao. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. He really slept because the American had gone, and for last 3 nights he was not able to sleep because he had a burden in his heart. And what was the burden? Because he was conscience stricken. He was a good human being and he could not kill anyone, but he had been waiting for someone to be killed by assassins in his home, so it was not his tendency. Now you say the man escaped, the general asked faintly. Faintly means in faint voice. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. तो जनरल का ऑपरेशन हो गया था 1 सप्ताह पहले, और अब उसको होश आ गया है, और उसने होश आते ही जब सडाओ ने उसको बताया तो उसने कहा अच्छा वो बच के निकल गया है. फॉर 12 आवर्स सडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव. ऑपरेशन के बाद 12 घंटे तक तो सडाओ को पता ही नहीं था कि वो बचेगा या नहीं बचेगा. द गाल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व मीन्स इट वॉज completely damaged. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. So जो जनरल था उसने ये बात कहते ही, क्या बात कहते कि वो बच के निकल गया, उसने तेज़ सांसें लेनी शुरू कर दी और खाना मांगना शुरू कर दिया. Sadao had not been able to ask about the assassins. So far as he knew, they had never come. He knew that assassins did not come, और वो पूछ भी नहीं पाया. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. So she was completely worried about the smell of the American soldier. यूमी ने बिल्कुल साफ़ कर दिया कमरे को, सल्फ़र जला दिया उसकी स्मेल को निकालने के लिए. Nobody said anything. Only the gardener was cross. Only the gardener was a little sad. वो इरिटेटेड था because he had got behind with his chrysanthemums. This is a kind of vegetation he used to grow there. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken about the prisoner. जनरल को जब होश आया 1 सप्ताह बाद, जब वो ठीक हो गया, तो जनरल सडाओ को लगा कि अब बताना चाहिए, और उसने बताया. यस एक्सीलेंसी, ही एस्केप्ड. सडाओ नाउ सेड. ही कफ्ड. उसने खांसते हुए कहा. सिग्निफाई दैट ही हैड नॉट सेड ऑल माइट हैव सेड. ही माइट हैव सेड मीन्स उसने वो सब कुछ नहीं बताया जो वो कह सकता था. बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर. मतलब कुल मिलाकर के जनरल को सारी बात सडाओ ने नहीं बताई, बट इंडिकेशन दे दिया दैट ही डिडंट टेल हिम एवरीथिंग. बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली. दैट प्रिजनर, ही सेड with some energy. Did I not promise you I would kill him for you?
मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूंगा। यू डिड एक्सेलेंसी, सडाओ सेड। हाँ किया था आपने, बिल्कुल मानता हूँ मैं। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट। ही वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड व्हेन ही सेड दिस। व्हाट डिड ही से? सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील। The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. ये तो हमको भी पता था। जनरल वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। ही हैड नथिंग एल्स इन हिज माइंड बट टू सेव हिमसेल्फ। और वो और किसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं था। और ये बिल्कुल क्लियरली बोल दिया उसने। उसका मीनिंग क्या है समझो, कि भाई मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। अगर वो अमेरिकन असिसिंस को मरवा देता, डेफिनेटली डॉक्टर सडाव को दुख होता। अकॉर्डिंग टू जनरल, जनरल को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैं ऐसे कर देता तो डॉक्टर सडाव को बुलाता और वो बदला लेता, मुझे ऑपरेशन करते वक्त मार देता। सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सडाव murmured. It was certainly very careless of me, the general said. But you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. Dereliction means लापरवाही. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, would not you? भाई अगर मामला उजागर हो जाए, लोगों को पता लग जाए that an American was at your home, तो तुम तो यही समझोगे कि जनरल मेरी कोई हेल्प नहीं की, भाई मैंने लापरवाही की। Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended, he suddenly understood that the general was in the palm of his hand, and that as a consequence, as a result, he himself was perfectly safe. So he came to know, जनरल भी नहीं चाहता मामला उजागर हो जाए, किसी को पता लग जाए। इस बात के बोलने के बाद सडाव को पूरा विश्वास हो गया that he had nothing else to be afraid. I can swear to your loyalty. मैं तुम्हारी वफादारी की कसम खा सकता हूँ एक्सीलेंसी, he said to the old general. And your zeal against the enemy, और आपका जो झील है, जो आपका जोश है एनिमी के खिलाफ, उसकी भी मैं कसम खा सकता हूँ। मीन्स आई बिलीव इन योर लॉयल्टी एज वेल एज योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द एनिमी। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। बट सडाव, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी। ट्वाइलाइटेड मीन्स जो शाम के वक्त जो टाइम होता है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं, और सुबह के वक्त जो होता है उसको डॉन बोलते हैं, DAWN। सो जब सन सेट होता है उसके जस्ट आफ्टर, उसके उसी समय का जो टाइम होता है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। सी दैट नाइट, उस समय संध्या के समय जब वो समुद्र की तरफ देख रहा था, हैड हिज रिवॉर्ड, उसको अपना इनाम मिल गया। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। सनसेट के टाइम पे उसे कोई फ्लैश लाइट दिखाई नहीं दी। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, हिज प्रिजनर वॉज गॉन, सेफ, डाउटलेस। निसंदेह वो जा चुका था, डाउटलेस है ये, क्योंकि अगर वो वहाँ पर होता तो डेफिनेटली एक फ्लैश लाइट तो देता, क्योंकि खाना तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ था। फॉर ही हैड वॉन्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट। कोरियन फिशिंग बोट आ गई होगी और वो उसमें चला गया होगा। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरेंडा, गेजिंग आउट to the sea from where the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. वो खड़े खड़े वहाँ पर सोच रहा था, उसी समुद्र की तरफ देख रहा था जहाँ से वो गोरा अमेरिकन आया था, और फिर उसके दिमाग में वो और दूसरे गोरे चेहरे भी आ गए बिना कारण के, जिनको वो जानता था, जो अमेरिका के थे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, उसका चेहरा। अ डल मैन, जो कि एक बहुत ही डल मैन था। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन, वो भी याद आई। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, हालांकि वो बड़ा काइंड होने की कोशिश करती थी, उसकी इच्छा थी, बट शी वॉज टॉकेटिव। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ। एनाटॉमी के प्रोफेसर हमेशा कहा करते थे कि भैया अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ सर्जन, यू मस्ट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो वो कहता था मर्सी रखो, नाइफ से, चाकू से मर्सी रखो, मीन्स दया करो अपने पेशेंट पे, पूरी नॉलेज रखो बॉडी की, तभी काटो। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटरली लैंडलेडी, और फिर उसे अपनी उस बड़ी बदमिजाज लैंडलेडी की याद आई जिसके घर में वो रहता था,
he had great difficulty in finding a place in to live in America because he was a Japanese. अमेरिका में उसको रहने के लिए घर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया था. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह, पहले से ही किसी के बारे में सोच बना लेना. फॉर्म आ थिंकिंग और an image of someone without judging that person, without assessing prejudice. तो जैपनीज़ के बारे में उनकी जो सोच थी वो पहले से ही बनी हुई थी और उसी के कारण वो जैपनीज़ लोगों को शायद घर रहने के लिए ना देते हों, इसलिए उसको बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी. एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट. और वहाँ पर रहना बड़ा दुखी कर देने वाला था, अकॉर्डिंग टू सडाव. नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, ये जानते हुए कि वो उनसे सुपीरियर था और फिर भी वो उनके साथ रह रहा था, उनको कंप्लाई कर, उनके ओबे कर रहा था, उनको ये फील करा रहा था दैट दे आर सुपीरियर. हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड, हाउ ही हैड हेटेड द इग्नोरेंट. इग्नोरेंट मीन्स हु हैज़ नो नॉलेज. एंड डर्टी ओल्ड वुमेन who had at last consented, who had at last accepted to house him in her miserable home. Miserable means very bad home. हालांकि एक औरत ने उसको अपने घर में रहने के लिए परमिशन दे दी, हालांकि घर अच्छा नहीं था. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. सडाव को एक बार इन्फ्लुएंजा हो गया था जिसकी वजह से उसको ट्रीट किया था, उसकी लैंड लेडी ने उसकी केयर की थी और वो सडाव ने उसके बदले में ग्रेटफुल होने की भी कोशिश की थी. बट इट वाज डिफ़िकल्ट, पर वो हो नहीं पाया था ग्रेटफुल. वो अपनी कृतज्ञता को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था. वाई? फॉर, क्योंकि शी वॉज नो लेस रिपल्सिव. रिपल्सिव मीन्स हेटफुल. टू हिम इन हर काइंडनेस ऑल्सो. जब वो दयालुता का काम कर रही थी, वो दया दिखा रही थी, तब भी वो बड़ी घृणात्मक थी. मीन्स उसका रवैया जो था ना, वो बड़े कमेंट टॉन्ट पास करती होगी उसके ऊपर और उसकी हेल्प भी कर रही होगी, उसकी सेवा भी कर रही होगी और उसको फील भी करा रही होगी. सो इट कुड नॉट बी दैट यू फील ग्रेटफुल फॉर सच अ पर्सन कि आपकी हेल्प करने के साथ साथ आपको दो चार सुना भी रहा है. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर. अब उसको वो युवा सा बड़ा कमज़ोर सा चेहरा नज़र आया अपने उस वाइट प्रिजनर ऑफ वॉर का. वाइट एंड रिपल्सिव, जो वाइट था और रिपल्सिव मीन्स घृणात्मक था, वो फिर चेहरा याद आया. लुक एट दिस, वाई वी हैव बीन टोल्ड बाय द राइटर अबाउट दिस. ही डिडंट लाइक एनीथिंग अबाउट द अमेरिकन्स, स्टिल ही सेव्ड दैट अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. When he was living in America, he had to face many struggles, he had to face many difficulties there. He didn't like the professor where he met Hannah, and he was not even full of compassion for the landlady, means he didn't like her also. So there is nothing about Americans that he liked. Still he was blamed by his servants. And now it proves that he was a good human being. That's why he saved that American prisoner of war. अगर अमेरिकन्स ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता जब वो अमेरिका में था, तो डेफिनेटली उसका मन करता कि भाई अमेरिकन्स अच्छे हैं, मैं करूँ ऐसा. बट उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको अमेरिकन्स अच्छे लोग नहीं मिले उस वक्त, और उसको वो याद भी आए, बट फिर भी उसने उन चीज़ों का बदला नहीं लिया उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर से. इट शोज़ दैट ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो उसको अपना इतने सारे अमेरिकन्स की याद आई जिनके साथ वो रहा था, जिनके साथ उसने डील किया था वहाँ पर, और फिर उसको उस प्रिजनर ऑफ वॉर का फेस भी याद आया जो बड़ा कमज़ोर सा, बड़ा घृणात्मक सा, वाइट कलर का था. स्ट्रेंज ही थॉट, बड़ी अजीब बात है. आई वंडर, आई थिंक, वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैं उसे मार क्यों नहीं पाया. सो दिस इज अ क्वेश्चन वाई ही कुड नॉट किल हिम. इट इज़ very easy to answer that he was a good human being, and before that, he was a doctor. It was his duty to save the patient, but before that he was a good human being. And if you are having a soft heart, if you are kind enough, then you will not kill anyone. You will save even a single creature on this earth. You would not think of killing anyone. So this is why he could not kill that American prisoner. So in this way the writer has told us, she has clearly
told us without even using a single word in the story that we can kill the enemy just by making him our friend. We have to kill the enmity, not the enemy. अगर हम enemy को मारेंगे तो definitely उसका बदला लेने के लिए उसका कोई और आ जाएगा. You are not able to kill enemy. You will have to kill the enmity, and it can be killed only by spreading love, compassion, and we have to understand the people around us. So in this way she taught us how wars can be finished, how world can be a peaceful place, and she didn't use even a single word against war. So my dear students, I think you have well understood it, and from tomorrow we are going to discuss all the questions of this story, and if you have any doubt, please comment, and we'll meet tomorrow. Till then, take care, my dear student. Bye.